Hello, dear learners. Welcome to Sim India Technical Education Platform. I'm Edison, your mentor here. Today's topic of discussion is rolling contact bearings. So let's start. So today's discussion includes the following: prerequisites, means that the things you need to know before starting this topic. After that, introduction to the rolling contact bearings, then cylindrical contact bearings, after that angular contact bearings, and then self-aligning bearings, and at the last related questions to all these topics. So let's begin with this today's lecture. So first, that the things you need to know is basically classification of rolling contact bearings. So in previous tutorials I also told you about these classifications, but here let's revise it quickly. So very first is your deep groove bearing, after that cylindrical roller bearing, then angular contact bearing, self-aligning bearing, and taper roller bearing, and thrust ball bearing. So these are the various types of rolling contact bearings. So in previous lecture we already studied about this deep groove ball bearing. So today we will try to understand this cylindrical roller bearing, angular contact bearing, and self-aligning bearing. So we will focus on these three topics today. So let's move forward. So our mode of discussion throughout these topics is actually we will first try to understand the construction of a particular type of bearing. After that, its features, and then its applications. So under these three categories we try to cover up a bearing. So I think now you ready. Talk about today's topic, that is your roller contact bearing. तो रोलर कॉन्टैक्ट बेरिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आप यहाँ पर एक इमेज देख रहे हैं. So this is the image for this roller contact bearing. So any is rolling contact type of bearing has basically four essential parts, four important parts that you can see it here. Very first is your inner race. So inner race, this inside portion, the circular ring है, this is called inner race of any bearing. So this inner race is fit to this shaft. जो आपका इनर रेस होता है वो किसके साथ फिक्स होता है? शाफ्ट के साथ फिक्स होता है. सो दिस इज वेरी फर्स्ट element of a roller contact bearing is inner race. Second is your outer race. So this is the outer ring. So this is called outer race. This is the second very important part of any rolling contact bearing. इसके बाद हम बात करते हैं. थर्ड इज योर रोलिंग एलिमेंट. तो जैसे हम लोगों ने बॉल बेरिंग के अंदर पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पर रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग के अंदर जो रोलिंग एलिमेंट है वो क्या होता है? एक सिलेंडर होता है. यू कैन सी इट द सिलेंडर्स हियर. बट इन केस ऑफ बॉल बेरिंग द रोलिंग कॉन्टैक्ट्स एलिमेंट्स आर एक्चुअली स्फेरिकल बॉल्स. इस केस के अंदर ये क्या है? एक सिलेंड्रिकल रोलर है. सिलेंड्रिकल रोलर होता है रोलर कॉन्टैक्ट बेरिंग के अंदर. सो दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट element of a bearing, and another is your last one is your case or retainer. So this is the case, you can see it here. This is the case which align these rollers or these rolling contact elements. तो ये जो rollers है इनको alignment देता है, इनके motion को align करता है. तो इसको कहते हैं केज या इसी को कहते हैं रिटेनर. लास्ट लेक्चर पे जो हम लोगों ने जब डीप ग्रुप बॉल बेरिंग की बात की थी, उस समय मैं बताया था कि ये जो चारों एलिमेंट्स, इनकी मटेरियल्स क्या क्या होते हैं. सो इनर रेस, आउटर रेस एंड रोलिंग एलिमेंट्स आर जनरली मेड ऑफ अ सिंगल
material, that is a kind of steel, and while this retainer may have different materials, like it may be steel sheet, it may be brass, it may be any rubber or plastic. So these are the basic three materials that can be used for making these retainers. So this is all about the basic elements of any रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग। बात करते हैं कि रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो सिंपल से बात है कि इसके अंदर जो रोलर्स होते हैं, तो जो हमने बताया था आपको कि जो इनर रेस है, जो आपका आउटर रेस है, इन दोनों के बीच में ये आपके रोलिंग एलिमेंट्स रोलर्स होते हैं जो केज के थ्रू सपोर्ट होते हैं। तो आप देख सकते हो कि जो आपका आउटर रेस है, आउटर रेस के अंदर एक ग्रुप होता है, आप इस प्रोसेस में देख सकते हैं। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि जो इनर रेस है, इसके आउटर सरफेस पर एक ग्रुप होता है। तो इन्हीं दोनों ग्रुप्स के बीच में ये रोलर्स रोल करते हैं। ठीक है, तो दिस इज बेसिक, वेरी जनरल और वेरी सिंपल कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस रोलर कॉन्टैक्ट बेरिंग। इसकी बात करते हैं, इसके फीचर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं कि जो रोलर कॉन्टैक्ट बेरिंग्स होते हैं, ये रेडियल लोड्स लेते हैं, मींस अलोंग लोड्स always will be along the direction of its radius, this direction, रेडियस के डायरेक्शन में लोड लेते हैं। ये कोई भी तरह का थ्रस्ट लोड नहीं लेते, मींस जो शाफ्ट का एक्सिस है उसके अलोंग ये लोड बियर नहीं कर सकते। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट नो अबाउट दीज रोलर कॉन्टैक्ट बेरिंग्स। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये रिजिड होते हैं, दे कैन प्रोवाइड मोर रिजिडिटी एज कंपेयर टू बॉल बेरिंग्स। कि जैसे कि क्या होता है कि जब आपका लोड शाफ्ट के थ्रू इस बेरिंग पे आता है, तो बेरिंग एलिमेंट्स मस्ट बी रिजिड, इट शुड बी रिजिड, अदरवाइज इट विल बेंड एंड डेफिनेटली इट विल मींस इसकी वजह से आपका जो परफॉर्मेंस है बेरिंग का वो खराब हो सकता है। सो इसीलिए क्या होता है कि जो आपके स्फेरिकल कॉन्टैक्ट बेरिंग्स है या जो बॉल बेरिंग्स है वो कम लोड बियर करते हैं, क्योंकि उनके अंदर रिजिडिटी इतनी नहीं होती है और पॉइंट कांटेक्ट भी होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इनर रेस के बीच में और इस रोलर के बीच के जो आपका कांटेक्ट है वो कैसा, एक लाइन कांटेक्ट होता है। तो कांटेक्ट एरिया ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये ज्यादा लोड सपोर्ट कर सकता है। तो ये इसका एक एडवांटेज है। दूसरा ये है कि जब इसको हाई स्पीड पे भी आप अप्लाई कर सकते हो एंड it shows less friction at high speeds. So these are the features of this roller contact bearings. और इनके जो पॉसिबल एप्लीकेशन है उस पर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, मशीन टूल ट्रांसमिशंस, जितने भी मशीन टूल्स होते हैं इनके पावर ट्रांसमिशन में हम लोग जो है जहां पर बेरिंग्स यूज होते हैं वहां पर ये रोलर कॉन्टैक्ट बेरिंग यूज होता है। व्हील बेरिंग ऑफ रेलवेज, जो आपके रेल की जो बोगी होती है उस पे जो व्हील होता है, तो व्हील के एक्सल्स पे जहां पर आपको होता है तो वहां भी इसी टाइप का रोलर कॉन्टैक्ट बेरिंग ही होता है, बट डेफिनेटली उसका साइज ज्यादा होगा, अलग बात है, बट द टाइप ऑफ बेरिंग विल बी दिस रोलर कॉन्टैक्ट बेरिंग। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ वाइब्रेशंस मशीन्स होती हैं जिनका पर्पस होता है वाइब्रेशन क्रिएट करना, तो वहां पर भी इस तरह के रोलर कॉन्टैक्ट बेरिंग का यूज किया जाता है। और दूसरा आपका जो यूनिवर्सल कपलिंग होती है, तो उस यूनिवर्सल कपलिंग के अंदर जो एक क्रॉस बेरिंग यूज होता है वो भी आपका रोलर कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ बेरिंग ही होता है। सो दीज आर सम एप्लीकेशन ऑफ रोलर कॉन्टैक्ट बेरिंग्स। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं अनदर काइंड ऑफ बेरिंग, दैट इज योर एंगुलर कॉन्टैक्ट बेरिंग। तो अगर हम एंगुलर कॉन्टैक्ट बेरिंग की बात करें तो इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कैसा होता है। तो इस इमेज के थ्रू समझते हैं। ये जो आप एक डायग्राम पहला देख रहे हैं ये क्या है, आपका एक डीप ग्रुप रेडियल बॉल बेरिंग का है। तो ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये आपका इनर रेस है और जो ये हिस्सा देख रहे हैं ये आपके क्या है, आउटर रेस है। तो आप देख पा रहे हो कि इनर रेस पर और आउटर रेस पर ये ग्रुप कटे होते हैं और इसी ग्रुप के अंदर आपका ये जो बॉल्स होती है यानी जो रोलिंग एलिमेंट्स होते हैं इन्हीं ग्रुप के अंदर ये फ्रीली मूव करते हैं, रोल करते हैं। सो दिस इज
योर बॉल बेरिंग। तो जो आपके डीप ग्रूव बॉल बेरिंग है, ये आपका जो रिएक्शन देता है, ये सिर्फ आपका इस डायरेक्शन में देता है, यानी जो रिएक्शन है इसका सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, यानी ये सिर्फ रेडियल फोर्सेस लेते हैं और बहुत ही माइन्यूट सा ये जो है आपका एक्सियल थ्रस्ट लोड, एक्सियल लोड ले सकते हैं। बट वहीं अगर हम बात करते हैं जो एंगुलर कांटेक्ट बेरिंग है, देखिए इसमें क्या फर्क है, आप इजिली आप देख सकते हो कि जो इनर रेस ये है, ये इनर रेस है और ये आउटर रेस है। तो इनर रेस और आउटर रेस का जो ग्रूव है, ग्रुप का शेप देखिए आप यहाँ देखिए, यहाँ पर कॉनकेव टाइप का जो है आपका कॉन्वेक्स शेप का, कॉनकेव शेप का यहाँ पर आपका ये बना हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे ये ग्रुप थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आपका यहाँ पर ग्रुप, और आप देखिए आउटर जो रेस है वहां पर ग्रुप देखिए। तो जब ये इनर रेस आउटर रेस का ग्रुप थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो आप देखेंगे कि जो कांटेक्ट रिएक्शन है ये कुछ ऐसे होती है, जैसे आप देखेंगे इसके अंदर ये कांटेक्ट रिएक्शन आपकी क्या है, सीधा वर्टिकल है, लेकिन इस केस में देखिए कांटेक्ट रिएक्शन कैसी है, एक सर्टेन एंगल पर है। ठीक है, तो जो एंगुलर कांटेक्ट बेरिंग है वो कुछ एंगल बनाता है। अगर आप इसका ऐसे आगे की तरफ बढ़ाएंगे, फिर इसी तरह से आप अपर पोर्शन के थ्रू भी इधर के लेके आएंगे, तो ये दोनों क्या करेंगे, इस एक्सिस को कट करेंगे, यानी जो शाफ्ट का एक्सिस है इसको क्या करेंगे, कट करके एंगल सब्सटेंड करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी रिएक्शन होती है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक इस अपवर्ड डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में, एक आपको एक्सियल डायरेक्शन में। तो अगर हम एंगुलर कांटेक्ट बेरिंग और डीप ग्रूव बॉल बेरिंग के बीच में अगर हम कंपेयर करेंगे, तो वी कैन गेट मोर एक्सियल लोड as compared to this। तो इस पे हम बात करते हैं आगे। यहाँ पर आप इसको 3 डायमेंशनल व्यू में भी इसी बात को देख सकते हैं जो मैंने भी आपको बताया है। ये आपका इनर रेस है, ये आपका आउटर रेस है। तो इनर रेस और आउटर रेस का जो ग्रूव है उसका आप क्लियरली देख सकते हैं। तो ये जो आपका कांटेक्ट, जो लाइन ऑफ कांटेक्ट है, वो रिएक्शन, आपका लाइन ऑफ रिएक्शन इस तरह से आएगा। ठीक है, सो दैट इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम डीप ग्रूव बॉल बेरिंग। और ये आप येलो कलर से ब्रास साइज का ये आपका केस देख सकते हैं, जो क्या करता है, जिसका काम क्या है, इस इनर रेस के और आउटर रेस के बीच में इस बॉल को या इस रोलिंग एलिमेंट को अलाइन करना, इनके गैप को इनके पोजीशंस को मेंटेन करना। दिस इज ऑल अबाउट एंगुलर कांटेक्ट बेरिंग। ये 40 डिग्री तक के एंगल को कर सकता है। तो कंस्ट्रक्शन मैंने अभी आपको बता दिया ग्रुप्स के बारे में। सो ग्रुप्स इन इनर एंड आउटर रेस आर सो शेप्ड दैट द लाइन ऑफ रिएक्शन मेक्स एन एंगल विद द एक्सिस ऑफ बेरिंग। फीचर्स की बात करें, सो इट टेक रेडियल एंड थ्रस्ट लोड। सो अगर आपको ज्यादा थ्रस्ट लोड चाहिए तो आपको दो रो बनानी पड़ेगी, मीन्स यू नीड टू यूज 2 रोज ऑफ दिस रोलिंग कॉन्टेक्ट्स एलिमेंट्स। तो आपको थोड़ा सा इस पर डबल रो यूज करना पड़ेगा अगर आपको ज्यादा लोड बेयर करना है। और अगर हम बात करें डीप ग्रूव बॉल बेरिंग के कंपैरिजन में, इसमें लोड कैरिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होती है, ऑपरेशन लिटिल बिट क्वाइट है। इसके बाद हम बात करते हैं इनके एप्लीकेशंस की। तो एप्लीकेशन की बात करें तो ऑटोमोबाइल फाइनल ड्राइव, जो आपका एक्सेल, जो आपका रियर एक्सेल है, या जो आपकी कह सकते हैं कि जो आपका क्राउन एरिया है, जहां पर रियर एक्सेल में क्राउन होता है, डिफरेंशियल एरिया है, वहां पर जो बेरिंग्स यूज होते हैं वो आपके एंगुलर कांटेक्ट बेरिंग्स है। मशीन टूल स्पिंडल्स ड्राइव जो होते हैं, जैसे आप कह सकते हैं लेथ मशीन है, उसका स्पिंडल है, वहां पर जो बेरिंग रहेगा वो एंगुलर कांटेक्ट बेरिंग है, क्योंकि वहां पर एक्सियल लोड भी लेना होता है। और इसके बाद हम बात करते हैं जो डेंटिस्टरी टूल्स है, यानी डेंटिस्ट लोग जो टूल यूज करते हैं, तो उनको भी एक्सियल रोटेशन के साथ साथ उनको भी एक्सियल लोड लेना है। तो जहां कहीं भी आपके एक्सियल लोड
कैरी करना है, तो डेफिनेटली इन दैट केस वी विल ट्राई टू यूज दिस एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग्स। स्क्रू जैक है, आप इन चारों ही एप्लीकेशंस के अंदर आप देखें, चाहे ऑटोमोबाइल फाइनल ड्राइव यानी कि डिफरेंशियल की बात करें, चाहे मशीन टूल स्पिंडल की बात करें, डेंटिस्टरी टूल की बात करें या स्क्रू जैक की बात करें, इन चारों एप्लीकेशन के अंदर आपका एक्सियल लोड आएगा। तो जब कभी भी एक्सियल लोड लेना है बेरिंग को, तो उस केस के अंदर हम बात करेंगे एंगुलर कॉन्टैक्ट बेरिंग की। बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ बेरिंग, दैट इज सेल्फ अलाइनिंग बेरिंग। तो इसके बारे में देख लेते हैं इसके कंस्ट्रक्शन के लिए। तो आप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये एक तरह का सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग है। और इसकी खास बात आप देखिए, जिसके कंस्ट्रक्शन के अंदर आप देखेंगे, तो ये आपका इनर रेस है। तो इनर रेस के अंदर तो आप देखिए बहुत ही एक डबल, सबसे पहली चीज तो ये है कि डबल रो यूज किया गया, रोलिंग कॉन्टेक्ट की, आप रोलिंग एलिमेंट्स की डबल रो है। तो आप इनर रेस के अंदर ये दो ग्रुप इस तरह से देख सकते हैं इजिली। और जो आउटर रेस है, इसके अंदर क्या होता है, ये कॉमन आपका ग्रुप है। जो आउटर रेस पर जो आपका ग्रुप है वो कॉमन है, यानी दोनों रोज के लिए कॉमन है। तो इस फीचर की वजह से ये जो आपका इनर रेस है, वो आउटर रेस के कंपेयर में एक सर्टेन एंगल पर, यानी अप्रोक्सीमेटली 2.5 डिग्री एंगल तक ये एक्सिस से टिल्ट हो सकता है, अलाइन हो सकता है। सो दिस फीचर्स कम इनटू this type of construction, due to this type of construction। तो ये इसके फीचर्स की बात ही आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका हाउसिंग है ब्रैकेट के साथ में, ये आपका सेल्फ लाइनिंग बेरिंग लगा हुआ है। तो इनके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर होंगे, तो कई बार क्या होता है कि जब आपके हैवी लोड्स होते हैं, तो उन हैवी लोड्स की वजह से क्या होता है, जो शाफ्ट में कुछ डिफॉर्मेशंस आएंगे। तो जब शाफ्ट डिफॉर्म होगी और अगर यहाँ पर उस डिफॉर्मेशन को हम कोप अप नहीं कर पाएंगे, तो दैट विल कॉज द डैमेज इन बेरिंग। So in that kind of applications, we need to use this self-aligning bearing so that the deflection, maybe temporary deflection in shafts can be cooperated here। तो उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फीचर्स की बात करें तो 2.5 डिग्री तक का ये एक एंगल में मिसअलाइनमेंट को कैरी कर सकता है। बट एक बात ये है कि ये मोमेंट लोड नहीं कैरी करती इस तरह की बेरिंग। It takes radial loads as well as it can permit angular misalignment of 2.5 degree. So these are the features of self-aligning bearing। एंड एप्लीकेशंस की बात करें तो डेफिनेटली जहाँ कहीं हैवी लोड्स होंगे, जहाँ पर ज्यादा लोड्स आएंगे, जहाँ पर हमें शाफ्ट की डिफॉर्मेशन की चांसेस हैं, इन दैट केस हम इस तरह की बेरिंग को यूज करेंगे। तो सबसे पहली बात करते हैं एग्रीकल्चर मशीन टूल्स, जहाँ हैवी लोड्स हैं। कन्वेयर्स जहाँ पर मटेरियल को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक कन्वे करने के लिए ऑटोमेटिक कन्वेयर्स यूज होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कन्वेयर्स क्या होते हैं। जो कन्वेयर्स होते हैं वो दो एंड पर सिंपली सपोर्टेड होते हैं। जब कन्वेयर्स के सेंटर पे कोई लोड आएगा तो डिफ्लेक्ट होंगे, उस डिफ्लेक्शन की वजह से उनमें मिस अलाइनमेंट होगा और जो डिफॉर्मेशन होगा उसको कोप अप करना है। सो कन्वेयर्स, वुड वर्किंग मशीन्स एंड रोल सॉफ्ट, जो आपकी रोलिंग मिल्स होते हैं, रोलिंग मिल्स में भी रोलर्स होते हैं, उनमें भी लोड आता है, वो भी डिफॉर्म होते हैं। तो रोलिंग मिल के अंदर रोल सैफ्ट्स हैं, उनके एंड पर जो बेरिंग्स हैं वो इसी तरह का सेल्फ अलाइनिंग बेरिंग्स ही यूज किए जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ अलाइनिंग बेरिंग। So our mode of discussion throughout these topics is actually, we will first try to understand the construction of a particular type of bearing, after that its features, and then its applications. So under these three categories we try to cover up a bearing. So I think now you ready.
I utilized design of machine elements by BB Bhandari from McGraw-Hill Education and TataSteelLearning.com for preparing this content. Thanks for watching my lecture. Stay at home, stay safe. और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आगे की जो नए वीडियो हैं, आगे की जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो आप तक टाइम से पहुंचती रहे. थैंक यू वेरी मच. सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर.